Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, subject History and Civics, chapter number 5, lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. वाराणसी. हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? किसी ने नाम सुना है वाराणसी? बनारस सुना है? जैसे बॉम्बे को मुंबई बोलते हैं, मद्रास को चेन्नई बोलते हैं, उसी तरह बनारस को अब वाराणसी बोलते हैं. ओल्डेस्ट लिविंग सिटी अलोंग द बैंक ऑफ रिवर. गंगा रिवर के पास सबसे पुरानी कोई सिटी है तो वो है बनारस, वाराणसी. Banaras is older than history, older than tradition, older than even than legend, and look twice as old as all of them put together. Who wrote this? किसने लिखा है ये? Mark Twain. Introduction. Varanasi, also known as Kashi or Banaras. What's the other name of Varanasi? Kashi and Banaras. Is one of the oldest living city in the world. In the world, it's one of the oldest city. This means that it is one of the oldest continuously inhabited city. What is the meaning of inhabited? बसे हुए लोग वहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं. In the world. Studying the varied aspect of the city helps in attaining a better understanding of the evolution of history and culture near a river bank over a long period of time. ओके, वाराणसी जो है, वाराणसी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, वहाँ के कल्चर बहुत पुराने हैं. मीन्स इंडिया में अभी बहुत सारे सिटीज़ ऐसी हैं जो कल्चर को भूलते जा रहे हैं, बट वाराणसी में अभी भी सारे रिचुअल्स और फॉलो किए जाते हैं. मीन्स वाराणसी की जो गंगा आरती होती है, जो डेली 6:30 to 7 के बीच में रहती है, वो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है. Geographical location. Varanasi is located in the present day Uttar Pradesh. Where it is located? Uttar Pradesh, UP. It is situated on banks, the left banks of the river Ganga River. Ganga River के किनारे पर बसी हुई है वाराणसी. The river Ganga has played a large role in the settlement, development and continuity of life and livelihood in the Varanasi. Why it is famous? Because रिवर गंगा के आसपास जो है पहली सिटी ये स्टार्ट हुई थी. तो लिवलीहुड मतलब जो गंगा का जो वाटर है वो इतना सैक्रेड है, इतना पवित्र है कि अगर आप बॉटल में रख के उसको 10 साल भी अपने घर में रखते हो ना, तो वो एज इट इज़ रहता है, वो पानी ख़राब नहीं होता है. ये जो गंगा वाटर है, इसलिए उसे होली वाटर कहा जाता है, पवित्र जल. Sources. Literary and archaeological sources. Let's know about the different periods of the history of Varanasi. The Chinese traveler Xuanzang. चाइनीज़ नेम बहुत डिफरेंट होते हैं. चाइनीज़ जो ट्रैवलर आया था इंडिया में विज़िट करने के लिए, Xuanzang, who visited Varanasi in the 7th century CE, noted the city extended for 5 किलोमीटर. उस टाइम पे सिटी कितना एक्सटेंडेड था? 5 किलोमीटर्स का एरिया था. And was situated on the western banks of the Ganga river, and it is situated on the western banks of Ganga river. Where it is situated? Western banks. The river Ganga has played a large role in. We also get to know about Varanasi from the Purans, Ashtadhyayi of Panini,
the Mahabharata, and the various writing on the city during the time of British. Okay, at the time, British time, the वाराणसी also famous. वहाँ पर भी वाराणसी में बहुत ज़्यादा ये लोग थे ब्रिटिशर्स, और बहुत सारा जो है उसके बारे में लिखा है। महाभारत में लिखा है वाराणसी के बारे में, पुराण्स में लिखा है, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि में, इन सब चीज़ों में महाभारत के बारे में लिखा है। A brief history. Varanasi had become an important commercial and industrial center in antiquity. Antiquity means पुराने टाइम में, उस टाइम पे ज़्यादा सिटीज़ नहीं थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो एक ही सिटी फेमस थी, द नेम इज़ वाराणसी. It was famous for its silk and muslin fabrics, perfumes, ivory works and sculpture. Why it is famous? It is famous for वहाँ के फैब्रिक्स अच्छे थे, परफ्यूम्स अच्छे हैं, आइवरी वर्क्स अच्छा होता है, स्कल्पचर अच्छे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से वो फेमस था. During the time of Buddha, 6th century BCE, Varanasi was the capital of kingdom ऑफ काशी. ओके, काशी की जो कैपिटल थी वाराणसी थी, जब बुद्धा का जब टाइम चलता था, बुद्धिज्म जब नया नया आया था. मीन्स द चाइनीज ट्रैवलर सियान सिंह visited Varanasi in the 7th century. The city of Varanasi thrived under the rule of Akbar during the medieval period. medieval period के टाइम पे जो सिटी थी वो अकबर के अंडर कंट्रोल थी. The Marathas during the late medieval period also contribute to the development of the city of Varanasi. Okay, then after किसकी कंट्रोल है? मराठास के कंट्रोल में ही वाराणसी. The British documented a thriving ancient city through numerous sketches and articles in scholar journals. Okay, so British के टाइम पे मतलब जो न्यूज़पेपर्स और ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी बहुत वो लोग बनाते थे. डेली डायरी लिखना, ये सब हैबिट्स हमारे अंदर चाहिए, वो ब्रिटिश की वजह से आई है ना. तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें बहुत सारा वाराणसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. प्रेजेंट डे वाराणसी. वाराणसी इज़ द thriving spiritual center that attracts pilgrims and tourists from all over the world. Okay, if any foreigners visit to India, then they have to visit वाराणसी. अगर कोई भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वो वाराणसी ज़रूर विज़िट करते हैं. The ghats of Ganga river at Varanasi are used for रिलीजियस बाथिंग. गंगा का जो किनारा है वाराणसी का, वो रिलीजियस बाथिंग, कुंभ स्नान रहता है ना, प्रयाग का जो रहता है वो सब सारा. द ओल्डर पार्ट्स ऑफ वाराणसी हैव नैरो रोड्स एंड ओल्ड बिल्डिंग्स एंड द सिटी इज़ होम टू मैनी टेम्पल्स दैट आर विजिटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर. ओके, सो जो सिटी है बहुत पुरानी सिटी है, तो वहाँ पर मतलब व्हीकल्स तो नहीं चलते थे, ट्रांसपोर्टेशन का कोई यूज़ नहीं होता था, तो इसीलिए वहाँ पे रोड्स आपको बहुत पुराने मिलेंगे और बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है वहाँ पर. और वहाँ पर हर साल एक्चुअली में टेम्पल्स बहुत सारे हैं वहाँ पर, तो इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं. द विश्वनाथ, संकट मोचन एंड दुर्गा टेम्पल आर इम्पॉर्टेंट साइट्स इन द सिटी. At Sarnath, a few miles north Varanasi, there are ruins of ancient Buddhist monasteries and temples. Temples built by the Mahabodhi Society and by Chinese, Burmese and Tibetan Buddhists are also located here. Okay. The Vishwanath and Shankat Mochan and Durga temples are important site in the city. ये कुछ वहाँ के important temples हैं. वाराणसी के नॉर्थ में आपको मिलेगा सारनाथ टेम्पल, और बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ भी वहाँ पर मिलेंगे जिनके रूइंस हैं, मतलब खंडर बने हुए हैं. अब
बट पहले वहाँ पर मोनेस्ट्री बनाई गई थी। और जो महाबोधि सोसाइटी है उसके भी टेम्पल्स है वहाँ पर, जो कि किस किस ने बनाए थे, चाइनीज़ ने बनाए, बर्मीज़ ने बनाए, तिब्बतियन ने बनाए और बुद्धिस्ट ने बनाए। इन सब लोगों ने भी अपने टेम्पल बना रखे हैं वाराणसी में। वाराणसी इज़ फेमस फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड ब्रोकेड sarees with gold and silver thread work. These sarees are popularly known as Banarsi sari. The city is also home to the Banaras Hindu University, one of the major university of India. Okay, Banaras University is very famous. बेसिकली वहाँ पर किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन होता था, सिल्क का होता था, ब्रोकेट का होता था, साड़ीज़ बहुत फेमस है। बनारसी साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट की जाती है बनारसी साड़ीज़। और जो साड़ीज़ होती है उसमें जो गोल्ड और सिल्वर की बनी होती है, मीन्स जो थ्रेड लगता है ना साड़ीज़ के बीच में, तो वो होता है गोल्ड और सिल्वर का। If you want to learn more about this Varanasi, this city, then you have to visit this website. Websites for further information: http://varanasi.nic.in and http://www.britannica.com/Varanasi. Okay. द रिवर बैंक्स अलॉन्ग द गंगा रिवर, बिकॉज ये मतलब वाराणसी जो है पूरा गंगा रिवर के आसपास ही बना है। हियर यू कैन सी द फेमस प्लेसेस ऑफ बनारस, अ बिल्डिंग एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखो यार कितनी प्यारा कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। स्तूपा एट सारनाथ, सारनाथ का स्तूपा, डोम शिप रहती है यूजुअली। ओके, बोट्स ऐसी चलती हैं पहले के ज़माने में। सी नेक्स्ट, पेज नंबर 58, कंपैरिजन बिटवीन द अर्ली एंड द लेटर वैदिक एज। सो yeah, if we compare both, then all doubts are cleared related to early Vedic age and later Vedic age. Political, social and religious, on the three bases we discuss this age. Number one, early Vedic age. Political, the Raja was the chief of the Jan. Yes, we know that he is the head. He was abided by the tribal assembly called the Samiti. Yes, he has to attend the assembly, the Samiti. Sabha was another important क्लेन बेस्ड असेंबली। सभा जो होती थी वो क्लेन बेस्ड होती थी, मतलब कास्ट वंश के अकॉर्डिंग रहती थी। द राजन वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाय पुरोहिता, प्रेस्ट एंड सेनानी मिलिट्री ऑफिसर। राजा को कभी भी कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो प्रेस्ट होते थे, जो सेनानी होते थे, वो उन्हें असिस्ट करते, वो उन्हें गाइड करते हैं। लेटर वैदिक एज, द रॉयल पावर इंक्रीज ओवर पॉपुलर असेंबलीज। ओके, रॉयल पावर ज़्यादा इंक्रीज हो गई, मतलब वो फिर उसके बाद में जो किंग्स थे वो अपने ऑफिशियल्स की नहीं सुनते थे। नोबल्स एंड ब्राह्मणास डोमिनेटेड द सभा। सो नोबल्स और ब्राह्मणास डोमिनेट मतलब हेड होते थे। ट्राइबल अथॉरिटी बिकम टेरिटोरियल, ट्राइबल अथॉरिटी कम हो गई थी। सोशल, Jana tribes was primary to social to the people. Family was indicated through the term griha. Family को क्या बोलते थे? गृह बोलते हैं। Family were largely patriarchal, though women had an important role in society. At that time, women have important role, and patriarchal means जो पैतृक संपत्ति होती है, या मतलब हमारे जो मेल जो होते हैं वो हेड होते हैं, ऐसा। Later Vedic age, society was divided into four varnas, namely Brahma, Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra। तो सोसाइटी किस में डिवाइड हो गई है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइड हो गई है। क्षत्रिय एंड ब्राह्मण वर द मोस्ट पावरफुल। क्षत्रिय और ब्राह्मण जो होते थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते थे, बिकॉज वो अपर क्लास में आते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ रिलीजन। Gods were based on natural forces such as rain,
द सन एंड द मून, रिवर्स एंड सो ऑन। गॉड कौन होते थे? जो नेचर होते थे वो उनके गॉड होते थे, जैसे कि रेन हो गया, सन हो गया, मून हो गया, रिवर हो गया। नेचुरल फोर्सेस वर पर्सोनिफाइड, मीन्स नेचुरल चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। लेटर वैदिक एज, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस बिकम इम्पॉर्टेंट। लेटर वैदिक एज में रिचुअल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। प्रजापति द क्रिएटर गॉड बिकम इम्पॉर्टेंट। जो प्रजापति होता था वो मतलब जिसे गॉड का ही रूप माना जाता था वो ज़्यादा फेमस होता था। प्रीस्ट ऑल्सो ग्रेट प्रोमिनियंस, प्रीस्ट जो होते थे, पुजारी होते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा शौहरत दी जाती थी, उन्हें हेड कहा जाता था। ओके, हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट। क्लास 6th, सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, होमवर्क। वर्ड मीनिंग, इनहेबिटेड, बसे हुए, मतलब किसी जगह पर काफ़ी टाइम से रहना, दैट मीन्स बसना वहाँ पर, इनहेबिटेड। एंटिक्विटी, ओल्ड टाइम। थ्रिव्ड, टू ग्रो। ओके, send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458। डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।